صبح ارلی مارننگ کی جو واک ہے وہ دی بیسٹ ٹائم ہے، اور یا شام کو سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے۔ جو لوگ شروع سے لے کر آخر تک زندگی میں واک کرتے ہیں ان کو کوئی خاص میڈیکل کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر تیز واک کرتے ہوئے آپ 5 منٹ کی واک ایسی کر لیں بیچ میں کہ آپ کا جو پیر ہے اٹھتا ہے تو آپ کا گھٹنا جو آپ کا نی ہے اٹھ رہا ہے تو وہ آپ کے سینے کے قریب ایسے آئے۔ الزائمر میں انسان اپنا نام بھول جاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھول جاتا ہے، اپنی کھائی ہوئی چیزوں کو بھول جاتا ہے، پہنے ہوئے کپڑوں کو بھول جاتا ہے، اپنے دوستوں کو بھول جاتا ہے، اپنی لائف کو بھول جاتا ہے۔ بس وہ دن پورے کر رہا ہوتا ہے دنیا میں۔ صرف اکیلی واک کرتے رہیں تو الزائمر 30% تک لیس چانسز ہے آپ کو نہیں آئے گا۔ آپ خوش رہیں گے جب آپ گرینری دیکھیں گے، نیلا آسمان دیکھیں گے، اپنے باڈی کو حرکت دیں گے کنٹینیوسلی، تو آپ کا ڈپریشن ہوا بن کے اڑ جائے گا، آپ کو ڈپریشن ہوگا ہی نہیں۔ کولیسٹرول بڑھنے ہی نہیں دے گی آپ کی واک، آپ کے خون کو گاڑھا ہونے ہی نہیں دے گی واک۔ 20 منٹ صبح 20 منٹ شام کر لیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک دفعہ ہی 20 سے 30 منٹ روزانہ کر لیں تو آپ کا بلڈ پریشر بھی سلولی اینڈ گریجولی نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ جب باڈی کے خلیوں کو زیادہ آکسیجن ملے گی تو ان کی اسٹرینتھ بڑھے گی، ان کی طاقت بڑھے گی۔ جب سارے جسم کی طاقت بڑھے گی تو آپ کی بیماریوں کے خلاف آپ کی امیونٹی بڑھے گی۔ ہیلو، دس از ڈاکٹر مرتضیٰ۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کر آئے ہیں، اور وہ نیا ٹاپک ہے واک۔ واک آپ سارے کرتے ہوں گے، آپ سب کو واک کے بارے میں علم بھی ہوگا کہ واک کیا ہے، کیسے کرتے ہیں، کیا چیز ہوگی، عام سی چیز ہے۔ لیکن آپ کو یہ نہیں علم ہوگا کہ واک ضروری کتنی ہے ہماری لائف میں۔ واک ہماری لائف میں اتنی ضروری ہے جتنا ضروری ہمارا کھانا پینا، جتنا ضروری ہمارا پانی پینا، جتنا ضروری ہمارا سانس لینا، جتنا ضروری ہمارا اس دنیا میں رہنا۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے واک سب سے ضروری چیز ہے۔ آپ اتنا سمجھ لیں میری اس بات سے ہی کہ واک اتنی ضروری ہے کہ اگر آپ واک کو چھوڑ دیں تو وہ ساری دوائیاں آپ کو کھانی پڑیں گی جو آپ واک کرتے ہوئے آپ کو نہیں کھانی پڑیں گی۔ واک کرتی کیا ہے، ہوتی کیا ہے اور کیسے کرنی چاہیے؟ واک کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قدم اٹھانا، اپنے سٹیپس اٹھانا۔ اب بہت ساری ایپس بھی ایسی آ چکی ہیں کہ آپ اپنے بازو پہ وہ ایپ لگا لیتے ہیں، وہ چھوٹی سی ایک ڈیوائس ہوتی ہے، تو وہ آپ کے سٹیپس کاؤنٹ کرتی رہتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے سٹیپس کر لیے ہیں، آپ کے 5000 سٹیپس ہو گئے ہیں، 7000 سٹیپس ہو گئے ہیں، 10000 سٹیپس ہو گئے ہیں۔ واک کرنی کب چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے؟ واک کرنی زیادہ تر واک کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ ہے صبح سورج نکلنے کے قریب، یا پہلے یا بعد میں۔ صبح ارلی مارننگ کی جو واک ہے وہ دی بیسٹ ٹائم ہے، اور یا شام کو سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے، وہ بھی اچھا ٹائم ہے۔ لیکن جو سب سے اچھا ٹائم ہے وہ صبح کا ٹائم ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ دونوں ٹائم کی 2 دفعہ کی واک ایڈ اپ کر لے، صبح کی بھی اور شام کی بھی، تو اس کی زندگی خوشیوں سے، سکون سے بھر جائے گی۔ میڈیکل سائنس میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی زندگی میں جو میڈیسن کے پرابلمز ہیں، جو میڈیکل پرابلمز ہیں، وہ بہت حد تک نکل جائیں گے۔ جو لوگ شروع سے لے کر آخر تک زندگی میں واک کرتے ہیں ان کو کوئی خاص میڈیکل کی پریشانی نہیں ہوتی، نہ ان کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، نہ ان کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ میں ساری چیزیں آپ کو گناتا ہوں کہ واک کے فائدے کیا کیا ہیں ہمیں، اور واک کرنی کیسے چاہیے۔ نمبر 1 تو واک کوشش کرنی چاہیے جتنی تیز چلا جائے، برسک واک کرنی چاہیے اور خالی پیٹ کرنی چاہیے۔ آپ کے پاس پانی ہو، اس کا بھی پورا گلاس بھر کے نہیں پینا، اس کو سپ لینا چاہیے واک کے دوران یا واک سے پہلے، اور تیز واک کرنی چاہیے۔ اگر تیز واک کرتے ہوئے آپ 5 منٹ کی واک ایسی کر لیں بیچ میں کہ آپ کا جو پیر ہے اٹھتا ہے تو آپ کا گھٹنا جو آپ کا نی ہے اٹھ رہا ہے تو وہ آپ کے سینے کے قریب ایسے آئے، ایسے ادھر والا، ایسے ادھر والا، ایسے دونوں گھٹنے آپ کے سینے کے قریب اگر آئیں تو وہ 4-5 منٹ کی یہ والی واک اس آدھے گھنٹے کی واک سے زیادہ بینیفٹس دے گی آپ کو۔ تو سب سے پہلا کام تو آپ اپنی واک کو سیٹ کریں، یا تو اس کو برسک کر لیں، اور اس برسک کے اندر 5 منٹ کا یہ پیچ بیچ میں ایڈ کر لیں جس میں آپ کا گھٹنا آپ کے سینے کے قریب تک آنا چاہیے، یعنی پورا پیر اٹھا کے آپ واک کریں، پوری ٹانگ اوپر کو اٹھا کے۔ یہ واک کرنے کا ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا میں نے ٹائم آپ کو بتا دیا کہ کس ٹائم پہ کرنی ہے۔
ये तरीका है। तीसरा मैंने बताया कि खाली पेट करनी है। और चौथी अब आ जाए वॉक के फ़ायदों के ऊपर। यहाँ से शुरू करते हैं दिमाग से। सबसे पहला वॉक का फ़ायदा ये है कि ये अल्ज़ाइमर से बचाती है। अल्ज़ाइमर आपको पता है कितनी बुरी बीमारी है। अल्ज़ाइमर में इंसान अपना नाम भूल जाता है, अपने घर वालों को भूल जाता है, अपनी खाई हुई चीज़ों को भूल जाता है, पहने हुए कपड़ों को भूल जाता है, अपने दोस्तों को भूल जाता है, अपनी लाइफ को भूल जाता है। बस वो दिन पूरे कर रहा होता है दुनिया में। हर चीज़ उसके लिए बेमानी हो जाती है अल्ज़ाइमर वाले शख्स के लिए, क्योंकि उसको याद ही कुछ नहीं होता। अपनी बीवी का नाम तक नहीं याद होता, अपना नाम तक नहीं जिसको याद, उसको बीवी का नाम कहाँ से याद होगा। तो ये वॉक जो है वो अल्ज़ाइमर का इलाज है। अल्ज़ाइमर को आने से 15 से 30% तक रोक देती है ये वॉक। सिर्फ अकेली वॉक करते रहें तो अल्ज़ाइमर 30% तक लेस चांसेस है आपको नहीं आएगा, बल्कि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि अल्ज़ाइमर होता ही नहीं है जो लोग वॉक करते हैं उनको। दूसरा इसका जो बेस्ट फार्मूला है, बेस्ट फ़ायदा है, वो है डिप्रेशन का इलाज। अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे एक कॉल आई, उन्होंने कहा जी हमें बाईपोलर की दवाई चाहिए। आपने बाईपोलर पे एक शो किया था, बाईपोलर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसकी हमें एंग्जाइटी की दवाई चाहिए। डिप्रेशन क्यों आएगा? अगर आप पानी पूरा पिएंगे, आप अपने ब्रेन को हाइड्रेट रखेंगे और नेचर के साथ अटैच रहेंगे और नेचर में चलें फिरेंगे, वॉक करेंगे, अपने जिस्म को एक्सर्ट करेंगे, एक्सर्शन करेंगे, अपनी फालतू प्रोटीन्स डिज़ोल्व करेंगे, अपनी फालतू कार्बोहाइड्रेट्स डिज़ोल्व करेंगे, फैट्स डिज़ोल्व करेंगे, तो आपको डिप्रेशन होगा ही नहीं। आप खुश रहेंगे। जब आप ग्रीनरी देखेंगे, नीला आसमान देखेंगे, अपने बॉडी को हरकत देंगे कंटिन्यूसली, तो आपका डिप्रेशन हवा बन के उड़ जाएगा, आपको डिप्रेशन होगा ही नहीं। तीसरा इसका जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपकी आई साइट तेज़ होती है। जब आप वॉक करते हैं तो आपकी आंखें दूर तक देखती हैं। जब आप दूर तक देखते हैं तो आपकी आइज़ की स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप वॉक करते हुए, कई लोग वॉक करते हुए मोबाइल देख रहे होते हैं, कई लोग वॉक करते हुए दाएं बाएं देख रहे होते हैं, कई लोग नीचे सड़क पर देख रहे होते हैं। नहीं, वॉक करते हुए आपने सामने स्ट्रेट देखना है, और आपको अगर कोई दूर चीज़ नज़र आ रही है तो उस पर फोकस करें। जब आपको वो नज़र आना शुरू हो जाए फिर उससे अगली देखने की कोशिश करें। जब वो नज़र आना शुरू हो जाए फिर उससे अगली। इसी तरह से आइज़ को आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएं। इसका जो आइज़ का एक्सेस है ना, जो कनकेव और कन्वेक्स लेंस का एक्सेस है आपकी आइज़ का, वो बैलेंस होता जाएगा। और अगर वो बैलेंस होता जाएगा तो आपकी आई साइट तेज़ होती जाएगी। तो जो ही आपकी आई साइट तेज़ होगी, आपका इतना बड़ा ये फ़ायदा है कि ये उम्र बढ़ने से आपकी आई साइट वीक नहीं होगी। तो वॉक करने का ये कितना बड़ा फ़ायदा है कि आई साइट तेज़ होती है। अगली चीज़, ये हार्ट डिज़ीज़ को रोकती है वॉक। हार्ट डिज़ीज़ क्यों होती है? जब आपके जो नालियां हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है, तो यहाँ से आपकी हार्ट डिज़ीज़ शुरू होती है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने ही नहीं देगी आपकी वॉक, आपके खून को गाढ़ा होने ही नहीं देगी वॉक। आप चलेंगे, खून गर्म होगा, खून की सर्कुलेशन तेज़ होगी, तेज़ तेज़ ब्लड से गुजरेगा, हार्ट से गुजरेगा, कहीं क्लॉट नहीं फंसेगा, तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर उन लोगों के लिए वॉक बड़ी अच्छी है जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है। अगर आप वॉक करने की आदत डाल लें रोज़ाना 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम, अगर नहीं कर सकते तो 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम कर लें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक दफ़ा ही 20 से 30 मिनट रोज़ाना कर लें, तो आपका ब्लड प्रेशर भी स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद वॉक का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये लंग्स को ठीक करती है। आपके जब आप चलते हैं तो आपका सांस तेज़ तेज़ आता है। जितनी तेज़ सांस आएगा उतनी ही तेज़ ऑक्सीजन अंदर जाएगी, उतनी ही तेज़ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो आपके बॉडी के जितने खुलिये हैं ब्लड के ज़रिए से उनमें ऑक्सीजन जाएगी। जब ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो बॉडी के खुलियों को ज़्यादा ऑक्सीजन मुयस्सर होगी, अवेलेबल होगी। जब बॉडी के खुलियों को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उनकी ताकत बढ़ेगी। जब सारे जिस्म की ताकत बढ़ेगी तो आपकी बीमारियों के ख़िलाफ़ आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो इसको कहते हैं इम्यून सिस्टम आपका तेज़ हो गया। जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो बीमारियाँ खुद ही नहीं आएंगी आपके पास, जो कि आएगी वो आपके इम्यून सिस्टम से खुद ब खुद बाहर होती जाएगी। तो आपको गोलियों से, दवाइयों से, तकलीफ़ों से बचत दिलाती है वॉक। फिर लंग्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ये है कि आप सांस लंबा लें वॉक करते हुए, ऐसे
जितना लंबा आप सांस लें उतना ज़्यादा बेटर है। सांस लेंगे तो आपके लंग्स एंड तक ऑक्सीजन रिसीव करेंगे। हम यूजुअली सांस लेते हैं इतना, ये इस तरह, हमें पता भी नहीं होता कि हमने कभी पूरा भर के सांस लिया है कि नहीं लिया। साल हर साल ऐसे गुजर जाते हैं। अगर आप वॉक करें तो आपका सांस यहाँ की बजाय यहाँ तक जाना शुरू हो जाता है। तो जब आप लंबा सांस लेंगे तो वो ऑक्सीजन की मिकदार आपके लंग्स के, फेफड़ों के एंड तक, आखिरी नालियों तक जाएगी। जब लंग्स खुल जाएंगे आपके, तो आपको लंग्स की कभी कोई डिज़ीज़ नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनको लंग्स का प्रॉब्लम है, सांस चढ़ता है, सांस फूलता है, रेशा बन जाता है, खांसी आती है। यह सारी चीज़ों का इलाज कितना आसान है कि आप वॉक करें। फिर इसके बाद आप थोड़ा और आगे आ जाएं तो आपके पेंक्रियाज की सेहत है वॉक। पेंक्रियाज की सेहत कैसे है? जो लोग 15 से 30 मिनट रोज़ वॉक करते हैं उनको शुगर होने के चांसेस भी 30% कम होते हैं। 30% तक आपकी शुगर के चांसेस को रिड्यूस कर देती है। आपका पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं और अल्फ़ा सेल्स हैं, इनको स्ट्रेंथ देती है आपकी वॉक। जब पेंक्रियाज स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका शुगर की बीमारी आपके करीब नहीं आएगी। आपका ग्लूकोज की जो टॉलरेंस है वो बढ़ जाएगी। ग्लूकोज को जो तकसीम करके, उसको तोड़ के, जब मेटाबोलाइज जिसको हम कहते हैं करके, मेटाबॉलिज्म से जो एनर्जी डेवलप होगी वो ग्लूकोज की जो इंसुलिन जो पैदा करते हैं हम, उसके ज़रिए से होती है। वो जो एनर्जी डेवलप होगी वो बॉडी को स्ट्रेंथन करेगी। तो जब आपका पेंक्रियाज पूरी इंसुलिन पैदा करेगा तो वो आपके ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ना कि फालतू शुगर बना के आपके खून में फैलाएगा, जिससे आपको डायबिटीज़ की बीमारी लगेगी। तो पेंक्रियाज स्ट्रॉन्ग होगा तो डायबिटीज़ की बीमारी दूर होगी। और किससे आई है? सिर्फ एक छोटा सा वॉक का काम ऐड करने से। फिर इसके बाद आगे आ जाए, आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे लोगों को होती है। कॉन्स्टिपेशन का बेस्ट इलाज है वॉक। जब आपको कभी कॉन्स्टिपेशन हो, आप अपनी वॉक को 10-15 मिनट और बढ़ा दें और तेज़ कर दें और पानी और ऐड कर दें, तो आपका कॉन्स्टिपेशन नेचुरल तरीके से ही वो ख़त्म हो जाएगी। और जो लोगों को आदत होती है वॉक करने की, उनको कॉन्स्टिपेशन वैसे ही नहीं होती। अगर कभी हो तो अपनी फूड को चेक कर लें, कहीं कोई ऐसी चीज़ खा ली है जिससे वक्ती तौर पे आ गई है। लेकिन आप जब वॉक करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे, तो आपकी ये कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाएगा। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो कॉलन कैंसर नहीं हो सकता। कॉलन कैंसर इतनी गंदी बीमारी है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। कॉलन कैंसर में आपकी वो छोटी आंत और बड़ी आंत काट देते हैं और आपको एक बैग लगा देते हैं बाहर, और उस बैग में आपका सारा चीज़ें जमा होती हैं। वो रोज़ आप बैग चेंज करते हैं। तो कॉलन कैंसर का इलाज वॉक है। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो जो कॉलन कोई आपका कोना है आपकी आंतों का, इंटेस्टाइन का, वहाँ पर मटेरियल इकट्ठा नहीं होगा। जब वहाँ पर मटेरियल इकट्ठा नहीं होगा, आसानी से आगे चलता जाएगा मटेरियल और बाहर निकल जाएगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो कैंसर के चांसेस ही नहीं है, आपको कॉलन कैंसर नहीं हो सकता। डाइजेस्टिव सिस्टम का इलाज, कॉलन कैंसर का इलाज, कॉन्स्टिपेशन का इलाज। अब आगे आ जाए वेट लॉस। जो लोग वॉक करते हैं 10,000 स्टेप्स रोज़ाना, ब्रिस्क वॉक, उनका कभी पेट नहीं फूलता, उनका कभी वेट नहीं बढ़ता। हर बंदा हमारे पास आता है, वेट लॉस की दवाई दे दें, वेट लॉस की दवाई दे दें। वेट लॉस की दवाई वॉक है। वॉक कर लें, वेट लॉस की दवाइयों से जान छूट जाएगी। जिनका वेट बढ़ता है उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उनको हार्ट डिजीज़ आती है। हार्ट डिजीज़ से तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये बचाती है, तो वेट लॉस से भी बचाती है। अब आ जाए नेक पेन पे। बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल का इशू होता है। बैठे रहने से, मेरी तरह ऐसे करके बैठे हुए हैं, सारा दिन बैठे ही हुए हैं, ऐसे करके पढ़ी जा रहे हैं, कुछ कंप्यूटर पे काम करी जा रहे हैं, बैठे ही रहते हैं, नेक को सुकून नहीं आता, नेक रिलैक्स नहीं होती। जब आप ऐसे वॉक करती हैं ऐसे करके, तो आपके जिस्म का एक एक अंग वो वर्क कर रहा होता है। जब एक एक अंग वर्क कर रहा होता है तो उसमें आपके सर्वाइकल के सारे मोरे वर्क कर रहे होते हैं। सर्वाइकल के मोरे ही नहीं खाली वर्क कर रहे होते, आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे वर्क कर रही होती है, ऐसे वर्क कर रही होती है। जब पूरी स्पाइनल कॉर्ड वर्क कर रही होती है तो स्पाइनल कॉर्ड की एक साइंस है। जब आप जिस्म की किसी भी हड्डी को काम में लाते हैं तो वो हड्डी स्ट्रॉन्ग होती है। स्पाइनल कॉर्ड को जब आप वर्क में लाते हैं ऐसे करके, एक्सरसाइज करके, तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती है। जब उसके सारी डिस्कें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, सारी डिस्क मजबूत हो जाती है,
तो उसमें गैप नहीं बनता। जब उसमें गैप नहीं बनता तो आपको कभी रीढ़ की हड्डी का मर्ज़ नहीं होता। कितने लोग ऑपरेशन करवाते हैं, सर्जरियां करवाते हैं रीढ़ की हड्डी के लिए, अपने डिस्क सेटल करवाने के लिए। डिस्क हिल गया हमारा, सारी ज़िंदगी बाकी की सम टाइम व्हील चेयर पर गुजारते हैं या बेड पे गुजारते हैं। तो एक छोटा सा नुस्खा एडप्ट कर लें, वॉक से आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका ये जो नेक के मसल्स हैं ये, और नेक के मोरे, और पूरी आपकी रीढ़ की हड्डी के मोरे अप टू डेट हो जाते हैं। इससे अगली बात भी सुन लें, जब आप वॉक करते हैं तो आपका जिस्म की एक चीज़ हिल रही होती है, इस्तेमाल में आ रही होती है। और जिस्म की, जैसे मैंने बताया कि साइंस है कि इसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जिस ऑर्गन को ज़्यादा इस्तेमाल करोगे वो ऑर्गन उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो जब आप हड्डियों को हिलाओगे तो हड्डियां भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। सिर्फ ये रीढ़ की हड्डी की बात नहीं कर रहा, ये घुटनों की हड्डी की भी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारे घुटने वीक हो गए। तो घुटने वीक होने से रोकने का कितना आसान इलाज है कि आप वॉक करें। जब आप वॉक करेंगे तो घुटनों में फ्लूइड आपका कम नहीं होगा, वो फ्लूइड और जनरेट होगा घुटनों के कवर के अंदर। जब फ्लूइड पूरा रहेगा तो आपके घुटने एक दूसरे से रगड़ नहीं खाएंगे और उनमें गैप नहीं पैदा होगा और उसकी हड्डी बारीक नहीं होगी। जब गैप नहीं होगा, हड्डी नहीं खुरेगी, तो आपका ये घुटने की दर्द भी नहीं होगी। आपका घुटना आपके मरने तक स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी घुटनों की दर्द की। फिर इसी तरह से आ जाए आर्थराइटिस, जैसे मैंने बात की कि हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग रहती हैं। जब हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग रहती हैं वॉक से, तो आर्थराइटिस भी नहीं होगा। अब इसके बाद आप आ जाएं कि वॉक करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो क्या है। वॉक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप डॉक्टरों से बचे रहते हैं। जब आप डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से, हम जैसे लोगों से दूर रहेंगे तो आपको आपकी ज़िंदगी वैसे ही पुरसकून हो जाएगी, वैसे ही सेहतमंद हो जाएगी। तो मेरा ख़्याल है कि आज की बातें आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी आपके साथ, अगर आप वॉक ऐड कर लेंगे। अब जाते जाते आपको एक काम की अच्छी बात बता दें। एक चीज़ होती है करैक्टर, किरदार। इंसान का करैक्टर, उसके अपने किरदार को अगर देखना हो तो इतनी सी एक बात देख लें, वो लोगों के ऐबों से कितनी नज़र चुराता है। जो शख्स लोगों के ऐब ढूंढने की टो में लगा रहता है उसका करैक्टर उतना ही लो लेवल का होता है। जो शख्स लोगों के ऐब देख के उनसे नज़र चुरा ले, इधर उधर हो जाए और कभी किसी के ऐब पे गौर ना करे, बल्कि उसकी खूबियाँ ढूंढे उसके जिस्म के अंदर, उसके दिमाग के अंदर, उसके दिल के अंदर, उस शख्स में, हर शख्स में खूबियाँ होती हैं। अगर कोई शख्स ऐब वाला है तो ऐब भी होते हैं, मेरे में भी होंगे, सब में होंगे। तो अगर कोई किसी दूसरे शख्स का करैक्टर नापना है तो उसका बड़ा एक पैमाना ये है कि देखें वो दूसरों के ऐबों पे कितनी नज़र रखता है। आप दूसरों के ऐबों से नज़र चुराएं, अल्लाह ताला आपके ऐबों से नज़र चुरा लेगा। आप दूसरों के ऐबों को दरगुजर करें और उनकी खूबियों को उजागर करें, बढ़ाएं, आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको भी आसानियाँ दे और आपको आसानियाँ आगे बांटने की भी तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच।